Hello students, now today we are going to continue the same chapter, that is forms and frames, lesson 5. In the previous class I have told you कि forms क्या होते हैं. Again I am going to revise. Forms are actually help us to collect the information from the user. It just resembles a paper on which a user fills the required information. You have seen when you are going to fill a form online, or suppose you are going to take admission anywhere, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है ऑन विच यू पुट ऑल योर इन्फॉर्मेशन, योर नेम, योर फादर्स नेम, योर ऑल पर्सनल डिटेल्स, एवरीथिंग. एंड देयर यू फाइंड ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स, एंड दीज बटन्स हैव अ स्पेसिफिक रोल. When we sometimes we have to just select, okay, sometimes we have to put our information in detail. So in this way we have different ways to put the information. और वही information जब आप online fill करते हो तो these are in the form of forms, and you will find there are multiple buttons like text box, check boxes, radio buttons. तो हर चीज़ का अलग अलग रोल है. तो सब इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू सी हाउ वी कैन क्रिएट अ फॉर्म. आई हैव क्रिएटेड अ फॉर्म. आई हैव टोल्ड यू हाउ कैन यू डिफाइन अ फॉर्म. फिर आप उसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टेक्स्ट बॉक्स इज देयर इन विच यूजर कैन पुट इट्स नेम. फिर चेक बॉक्स बताया था. चेक बॉक्स एक्चुअली हेल्प द यूजर टू सेलेक्ट. समटाइम्स वी हैव सो मैनी choices which we have to give to the user. तो यूज़र को चेक बॉक्सेस का क्या रोल है? चेक बॉक्सेस हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू गिव मल्टीपल चॉइसेस टू द यूज़र. ठीक है, और उन मल्टीपल चॉइसेस में यूज़र मल्टीपल चॉइस को भी सेलेक्ट कर सकता है और कैन वन. ठीक है, तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है. जहाँ पे आपको यूज़र्स को मल्टीपल चॉइसेस देनी है, देयर वी कैन मेक द यूज़ ऑफ चेक बॉक्सेस. ओके, इट इज़ जस्ट लाइक अ टॉगल स्विच. टॉगल स्विच क्या होता है? जैसे ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, अगर आप इसको हटा दो तो इट कैन बी डी सेलेक्ट. दिस इज कॉल्ड टॉगल. ओके, यू कैन सेलेक्ट बोथ, और आइदर यू कैन डी सेलेक्ट बोथ, और आइदर यू कैन सेलेक्ट एनी वन. तो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर की वेदर ही इज पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट. तो इट जस्ट लाइक अ टॉगल स्विच बिकॉज इट कैन बी ऑन और ऑफ, और इट कैन बी सेलेक्ट और डी सेलेक्ट. ओके, one more thing is there, and the last video I have told you everything about Ant Writer. It can be put on Android and do the HTML who don't have laptop and mobiles. But some students ask, ma'am, how we can close the file. So what you will do, you just see these 3 lines, click on that. Suppose so many files are opened. ठीक है, आप किसी भी सारी फाइल्स को या किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको क्लोज करना है, what you will do, just select it, tap it. Okay, you will find these 3 buttons. It depends. Close, if you will click on close, only single file will close. Suppose I want to close all the files, then click on close all, and you will see all the files are closed. So in this way we can close the file. Just click here, select the file, you will find these buttons and click accordingly. Now today we are going to learn 2 more buttons, 3 more buttons, that is radio button, password field and drop down list. And this is very interesting. So I am going to continue the same video, same page. See, click on plus button. First you will open the file. Sorry, just near the plus button you see this icon. Click on that and see in last you will get your HTML file. So my file name was no name.html. This was my file, and the last video I have shown you how we can create a checkbox. Okay, I think my file is deleted. Let me check. No, let me check first. Okay, no issue. I think my file is deleted, or I maybe by mistake I have. Okay, no issue. Again I am going to make a password field. First I will show you how we can make a checkbox. तो उसके लिए आप पहले HTML हेड, टाइटल, बॉडी, फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट. अगर आप फॉर्म टैग स्टार्ट नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट फॉर्म्स. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू
जो भी आपको एड्रेस देना है जहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, पुट दैट एड्रेस इन एक्शन इन मेथड यू राइट पोस्ट और गेट. Then name of the form, it's not mandatory. After that you just keep on putting the check boxes. First let me show you its output. ये इसका output है जिसमें सिर्फ एक text box है. Now I am going to tell you how can you create a radio button. ठीक है, जैसे check box के लिए check box होता है तो same way you just put the tag input. Okay, we are working on input elements. Input, then write type. Now this time I am going to write radio button. अगर आपको रेडियो बटन चाहिए जस्ट क्लिक राइट डाउन रेडियो. नाउ इट हैज़ सेम एट्रीब्यूट नेम. इट्स योर चॉइस, आप क्या नेम देना चाहते हो. सपोज आई वांट टू गिव अ मेल बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव द चॉइस फॉर जेंडर. ओके, टू सेलेक्ट अ जेंडर. एंड वैल्यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बिकॉज इट विल नॉट पुट एनी थिंग. इट जस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव वैल्यू मेल. एंड रेडियो बटन का नाम हम कुछ और रख देते हैं लाइक R1. ओके, एंड एज इन चेक बॉक्स आई हैव शोन यू कि बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी चेक बॉक्स को सेलेक्ट रख सकते हो. वैसे ही अगर रेडियो बटन को भी आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक रेडियो बटन सेलेक्ट हो तो आप यू कैन राइट चेक्ड. सपोज मैं मेल में बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड रखना चाहती हूँ. ओके, जस्ट एंड नाउ राइट डाउन मेल, क्योंकि मेल जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करके यूज़र उसको रीड करके सेलेक्ट करेगा. तो लेट मी शो यू द आउटपुट. ये देखिए मेल, और ये इसमें सेलेक्टेड आ रहा है. ओके, बिकॉज आई हैव रिटन हियर चेक्ड. इसी तरह से हम एक और रेडियो बटन बनाएंगे. एंड आई विल राइट इनपुट. इट्स एट्रीब्यूट इज टाइप. टाइप एट्रीब्यूट में हम मेंशन करेंगे, आई विल मेंशन radio. When you are going to put a radio buttons, write down radio. And same name is equal to, suppose I have given R2. Its name is R2. It's your choice कि आप रेडियो बटन को क्या नाम देना चाहते हैं. And if you are not putting this attribute, doesn't matter, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Then value, suppose it is for female, तो I have given here female. And it is also not mandatory. Name and value attributes are not mandatory. Again I am telling you. एंड हियर आई विल नॉट राइट चेक्ड. ठीक है, क्योंकि रेडियो बटन क्या होते हैं, रेडियो बटन्स हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू गिव अ सिंगल चॉइस टू द यूज़र. मल्टीपल चॉइस के लिए हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, और रेडियो बटन्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ यूज़र को एक ही चॉइस देनी है. ही कैन सेलेक्ट ओनली वन. ओके, तो लेट मी शो यू. ओके, आई हैव नॉट रिटन फीमेल हियर बिकॉज जो भी हम चॉइस दे रहे हैं उसको प्रेजेंट करना कंपलसरी है. नो, सी मेल एंड फीमेल. तो अगर आप फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल आ जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन पुट. अगर आप यहाँ से चेक्ड हटा दोगे तो वो हट जाएगा. ओके, कैन सेलेक्ट ओनली वन. इन दिस वे चेक बॉक्सेस का मेन पर्पस क्या होता है. चेक बॉक्सेस आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू गिव अ सिंगल चॉइस टू द यूज़र. जब आपको सिंगल चॉइस देनी होती है यूज़र को. ठीक है, जैसे चेक बॉक्सेस में क्या होता है, एक बार मैं आपको चेक बॉक्सेस भी दिखा देती हूँ. उसमें हम लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स नेम इज इक्वल टू ग्रेजुएट था. ओके, इट्स योर चॉइस, आप क्या नाम देना चाहते हो. एंड सपोज आई वांट टू कीप इट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ग्रेजुएट. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन आई वांट टू राइट पोस्ट ग्रेजुएट बटन, तो आई विल राइट BR टैग. देन अगेन आई विल राइट इनपुट टाइप is equal to checkbox and value या नेम आप जो भी देना चाहते हो, नेम is equal to post graduate. It's your choice.
ठीक है। अब जैसे ग्रेजुएट और फीमेल के साथ आ गया तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके पहले हम बी आर टैग यूज़ करेंगे। या आई होप अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हमने स्टार्टिंग में टैग सीखे थे उसका क्या यूज़ है। ये देखिए, तो ये फ़र्क होता है चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में। रेडियो बटन में हम एक ही रेडियो बटन हम तब यूज़ करते हैं व्हेन आई वांट टू गिव अ वन चॉइस ओनली। कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें यूज़र सिर्फ एक ही चॉइस कर सकता है। ठीक है, जब हमें यूज़र को एक से ज़्यादा चॉइस नहीं देनी है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देने हैं सेलेक्ट करने के लिए, देयर वी विल यूज़ रेडियो बटन्स। बट वेयर वी कैन आई वांट टू गिव मल्टीपल चॉइसेस टू द यूज़र, देयर वी मेक द यूज़ ऑफ चेक बॉक्स। दिस इज़ द डिफरेंस। जो मेन डिफरेंस है वो ये है। ओके, एंड सेकेंड, रेडियो बटन्स आर सर्कुलर इन शेप and check boxes are square in shape. So in this way we can differentiate, but the main difference is that radio button is used when we want to give only one option among the several possible options, and check boxes we used when we want to give multiple choices to the user. It's their choice. Okay, now we are going to learn the next one, that is password. अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो या लॉगिन करते हो तो यू हैव सीन इट आस्क यू टू पुट द पासवर्ड, तो उसके लिए भी सेम टैग है इनपुट। ओके, यू आर लर्निंग ओनली इनपुट टैग। ओके, इनपुट टाइप, सिर्फ आपको क्या करना है, टाइप्स एट्रीब्यूट यूज़ करके टाइप टैग डिफाइन करना है। तो आई होप you understood why we use type, why it is used to mandatory to use type attribute in input tag, क्योंकि अगर आप type यूज़ नहीं करोगे तो you will not be able to define what type of input field you are going to put on the forms. तो अब जब आपको password करना है तो you will write input type is equal to password. Okay, then you can give the attribute name आप इसको कुछ भी दे दो, इट्स योर चॉइस, पासवर्ड। ओके, एंड दिस इज इनफ, एंड साइज, आप साइज़ भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पास साइज़ भी आपका, इट्स योर चॉइस, आप 30 20 आपको जो भी लगता है यू कैन। तो इसमें एक और एट्रीब्यूट आप नया सीख रहे हो, साइज़, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन टेक्स्ट। तो आप एक साइज़ भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है, 30, तो अगर मैंने 30 या 20 साइज़ जो भी दिया है, अगर मैं इससे ज़्यादा भी दे सकती हूँ तो वो उतना ही बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, यू कैन सी। ओके, मे बी आई हैव डन सम मिस्टेक। यहाँ पे हम पहले बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं जिससे वो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिले। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, एंड साइज इज इक्वल टू 20। ओके, तो इट इज़ करेक्ट। ये तो ये पासवर्ड आ गया। अब पोस्ट ग्रेजुएट के नीचे सिर्फ पासवर्ड बॉक्स आ रहा है, तो इससे पहले अब ये जब आप फॉर्मेटिंग करते हो तो हमें खुद ही समझ में आने लगता है कि हमें पासवर्ड बॉक्स से पहले हम यूज़र को बताएंगे कि ये किसके लिए है, टू फिल अ पासवर्ड, तो वो पासवर्ड आप मेंशन करोगे। ठीक है, तो इट इज़ शोइंग पासवर्ड। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे आप जब इसको रन करोगे, सपोज आई हैव रिटन नेम, आई हैव सेलेक्टेड दिस पोस्ट ग्रेजुएट, इसको हटा दो, पासवर्ड। ठीक है, तो ये देखिए अपने आप पासवर्ड जब हम फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट चेंजेस इनटू अ स्टार साइन, इट हाइड्स। ये क्यों होता है? क्योंकि ये अगर कोई आपके पीछे आगे अगल बगल खड़ा है तो ही विल नॉट बी एबल टू सी योर पासवर्ड। दैट्स वाई व्हेन एवर वी पुट आवर पासवर्ड इट ऑटोमेटिकली चेंजेस इनटू द different alphabet so that no one can identify it. Is that clear? So in this way you have learned the third one. You have learned text, you have learned radio, you have learned checkbox, and today password. Now after that we are going to learn how we can add a drop down list. Drop down list actually it helps us to user can select a particular item or different items. You have seen जब आप फॉर्म भरते हो
And these days you people are filling a lot of forms to participate in the contest or to take pledge, all that. So you have seen there are some fields in which we have so many choices which is not possible to put on check box and रेडियो बटन्स, क्योंकि चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स भी हमें सिंगल या मल्टीपल चॉइसेस के लिए यूज़ करते हैं, बट यूजिंग चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन्स वी कैन नॉट पुट मल्टीपल चॉइसेस 10 50, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो जब हमें जैसे सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है या इफ़ दे आस्क यू टू सेलेक्ट द स्टेट, इन दैट केस वी यूज़ द मेक द यूज़ ऑफ अ ड्रॉप डाउन। तो आई शो यू कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले ऑप्शन टैग। ओके, यू विल राइट ऑप्शन, सॉरी यू विल राइट सेलेक्ट। इसके लिए कौन सा टैग होता है? सेलेक्ट। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप एस कैपिटल में लिखो। उसके बाद इसमें हम एट्रीब्यूट, सेलेक्ट से क्या होगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा। अब हम लिखेंगे से, अब आप किसके लिए बना रहे हो? सिटीज़ के लिए, तो आपने उसको एट्रीब्यूट, उसको नाम डिफाइन कर दिया सिटीज़। ओके, अब आप सारी सिटीज़ का नाम लिखोगे। सिटीज़ का नाम आप किससे लिखोगे? ऑप्शन। हर बार आपको ऑप्शन टैग यूज़ करना है, ठीक है। एंड मेंशन द नेम ऑफ सिटी, सपोज हिसार। And every time you have closed also, you have to close. It's better कि हम इसको यूज़ कर लें, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको 4 5 के दिखा देती हूँ। ऑप्शन में अब जैसे आ गया आपका चंडीगढ़। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास 5 से ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं तो उस केस में ऑब्वियसली हम ड्रॉप डाउन करेंगे, क्योंकि इतने सारे चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स एक फॉर्म पे डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं है। बट ऑप्शन यूज़ करने से क्या होता है, हमारा स्पेस कम लगता है एंड वी कैन गिव सो मैनी चॉइसेस टू द यूज़र। एंड दिल्ली, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 5 सिटीज़ ले रही हूँ, यू कैन टेक मोर। अब आपने देखा होगा जब आप सिटी सेलेक्ट करते हो तो एक सिटी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आती है। तो अगर आप हिसार को बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर रखना चाहते हो तो उसमें ऑप्शन में आप लिख दो सेलेक्टेड। जैसे हम रेडियो में और चेक बॉक्सेस में क्या लिखते हैं? चेक्ड, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे? सेलेक्टेड। जिस भी, जरूरी नहीं कि आप हिसार को करो, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट पे उसी को आप सेलेक्टेड रखो। आप जिसको सेलेक्टेड पे लिखोगे वही सिटी फर्स्ट नंबर पे आएगी। तो जैसे सपोज मैंने हिसार के पहले ऑप्शन में सेलेक्टेड लिख दिया है, ठीक है। ऑप्शन को क्लोज किया, उसके बाद आप क्या करोगे? सेलेक्ट को क्लोज करोगे, ठीक है। अब रन करो, ये देखिए आ गया हिसार। सी, इन दिस वे आपने देखे होंगे जब आपने ई प्लेज लिया था तो इस तरह के ड्रॉप डाउन आ रहे थे, ठीक है। अब अगर आपको टैली लेना है या कोई भी लेना है आप ले सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा? हिसार। अगर मैं हिसार का हटा के मैं चंडीगढ़ करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप चंडीगढ़ वाले में सेलेक्टेड, लेकिन लिखना एक ही में है, 2 में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इट विल शो ओनली 1। तो देखिए चंडीगढ़ आ गया। नाउ यू कैन सेलेक्ट एनी वन। क्लियर? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसमें स्क्रॉल बार आए, ठीक है, कई बार क्या होता है, ये तो ड्रॉप डाउन हो गया। अब चाहते हो, अभी आपने देखा है जब आप इसको रन कर रहे हो तो ये स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ आपको एक ही फील्ड शो कर रहा है। तो अगर आप स्क्रॉल बार करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिंपल सा, मतलब इफ़ यू वांट टू मेक दिस, अभी तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन अगर आप इसको कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहते हो, कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन में बस एक ही डिफरेंस होता है, ड्रॉप डाउन में स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए इसमें आपको सेलेक्ट में एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, दैट इज साइज। अगर आप ये एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, जैसे मैंने साइज़ में मैं चाहती हूँ कि एक बार में ये 3 सिटीज़ दिखाए, तो इसमें अपने आप स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपका कॉम्बो, जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉम्बो में।
एक मिनट में इसको चेक कर लेती हूँ, व्हाट्स द इशू। ओके ठीक है, सेलेक्ट नेम इज़ इक्वल टू सिटीज़। ओके मुझे लगता है इसमें शायद मुझे और साइजेस देने चाहिए। कुछ और ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया मुंबई, ठीक है, एंड ले लेते हैं चेन्नई। आई थिंक ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप लोग लैपटॉप पे भी ट्राई करना। वैसे मैंने इसका साइज़, अगर आप साइज़ ऑप्शन एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, इट्स नॉट शोइंग। इसमें स्क्रॉल बार को ये ऐड नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बट अगर आप साइज़ ऑप्शन ऐड करते हो तो आई होप कि इसको इसमें ऑप्शन को शो करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने, अगर मैं साइज़ इज़ इक्वल टू 4 अगर कुछ भी लिखती हूँ, सपोज़ मैं 2 लिख देती हूँ, एनी साइज़, तो ये स्क्रॉल बार यहाँ पे ऐड होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, ये क्यों नहीं इसको कर रहा है। ओके सो यू प्लीज़ ट्राई। इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ, चलिए आप ड्रॉप डाउन ही करिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टाइम कि कॉम्बो बॉक्स कैसे ऐड करते हैं। अगर आप लोग के पास लैपटॉप हो तो आप बार इस पर प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके तो आज आपने क्या क्या सीखा। हाउ यू कैन क्रिएट अ रेडियो बटन, हाउ वी कैन क्रिएट अ पासवर्ड, एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम किस तरह से इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। ओके और इसमें स्क्रॉल फीचर अगर ऐड करना है तो वी हैव टू यूज़ एन एट्रीब्यूट दैट इज़ साइज़, बट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि हम साइज़ वीडियो को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप इतने ट्राई करके इसको यूज़ करोगे। थैंक यू।